رات کو کیا تو پڑھتا ہے دیکھنا چکر میں آج رات کو بھی دوسرے دن رات کو وہی پردہ اوڑھ لے سو کو پھر چک کرتی وہ صحابی کو سیم پھر پڑھ لیتی پھر چل جاتی تیسری رات کا دن اور تیسری رات کو وہی سیم ہوتا ہے چوتھے رات کو اٹھ کو بیٹھ جاتا ہے جے حضرت آؤ ادھر جے حضرت آؤ جی ادھر میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ تمہیں جنتی 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 کے بولے وہ کیا ہے اگر تمہارے پاس جنتی بننے سے نہ تو نفل نمازاں پڑھے نہ تو روزہ حریم نہ تو فرضوں میں تمہیں 5 خود کی کام پڑھ لینے مندے تو معلوم نہیں پر کس میں بھی تمہیں کامیابی نہیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہمیشہ آپ کو جنتی 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 3 ٹائم بولے تو مجھے حیران پریشانی ہے یہ کیا واسطے تمہیں جنتی کا اعلان کرے وہ 60 کو 5 سال کے صحابی بولنے لگتے ہیں اے بندے عبداللہ بن عمر اے عبداللہ بن عمر میں نماز پڑھ لے رہا ہوں جتنا پڑھنا ہے میں پڑھ لے رہا ہوں اے عبداللہ بن عمر میں نماز پڑھ لے رہا ہوں جتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھ لے رہا ہوں اور جتنا ذکر کرنا ہے اتنا ذکر کر رہا ہوں مگر میری یاد رکھو اے بندے اے صحابی میری یاد رکھو وہ کیا ہے کہ پوچھے تو میں کسی کے بارے میں یہ دل کے اندر بغاوت نہیں یہ دل کے اندر میں کسی کے بارے میں بغاوت نہیں کہا جس وقت میں کسی نے بغاوت کی بات کرے اسی وقت میں اسے معاف کر دیتا تھا یہ دل کے اندر نہ تو میرے پاس چگلی ہے دوسروں کے اوپر نہ تو غیبت ہے نہ تو ناپاکی کا بات بیٹھ اس جگہ پر بیٹھتی ہے میں ہر ہمیشہ رات میں اٹھا تو صبح اٹھا تو یہ بات کر لے کر کسی کے بارے میں نہ تو سستا نہ پیچھے کچھ نہیں کرتا میرا کام ہوا میرا رب ہوا میرا رسول ہوا بس اتنا ہی میرا کام ہے جو دیتا وہ کھا لیتا ہوں کوئی بات کرے تو کوئی ناراضگی کی بات بول جاتا ہوں سن لیتا ہوں پھر فوراً بولتا ہوں یا اللہ یہ تو بول کو گیا میں اس کے بارے میں نہ اتفاق نہیں کرتا ہے اللہ میرا دل پاک رکھنا بولتا یہ دل پاک ہے میرا کسی کے اندر میں بغاوت نہیں کرتا اس لیے تو وقتی بات بولتے ہیں عبداللہ بن عمر ہوتا یا اللہ یہ ہے یا اللہ یہ بندہ ہے مسجدی کے نوئی کے اندر اچھلنا پڑیا تھا اچھل کو بیٹھتا یا اللہ کے رسول یہ بندہ جنتی چوم لو اس کا ہاتھ اس کے لپٹ لو اس کا ہاتھ اس کے بدن کو چوم لو کیونکہ اس کا ہر آن پاک ہے ہم تو نمازی ہیں ہم تو روزگار ہیں سب کچھ ہے مگر بغاوت دل میں ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ یا رسول اللہ شان رسالت یا رسول اللہ شان رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی یا پیر حق قدیم یا پیر حق قدیم یا پیر حق قدیم حضرت جی مکی مدری حضرت جی مکی مدری حضرت جی مکی مدری حضرت جی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی ہو عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھتی مسجد نبوی کے اندر دیکھتے ہو ناشتہ ہے یا اللہ کے رسول یہ جنتی ہے آپ سچ کہے آپ سچ بولے میں نمازی ہوں 1,24,000 پیغمبر صحابہ کے اندر تمہیں کہہ دیے تھے یہ پکا نمازی اور پابندی عبادت گاروں میں سے افضل ہے اور اول نمبر ہے مگر آج میں کہتا ہوں یہ میرے سے افضل یہ ہے میرے سے افضل ہے کیوں کیونکہ میرے اندر بغاوت تھی میں اس کے اوپر انکوائری کرنے گیا تھا میں اتنے نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کے اوپر انکوائری کرنے گیا تھا انہیں نماز کی پابندی نہیں مگر اس کا دل صاف جو لوگ دل صاف رکھتے ہیں اللہ والے بن جاتے ہیں جو لوگ دل صاف رکھتے ہیں ان کا چہرہ نورانی نور پہ جاتا ہے جو لوگ دل صاف رکھتے دوسرے بھائی کو اپنے آپ کو سامنے والے سے میں چھوٹا ہوں سمجھنے والا خدا کے قسم انہیں بڑا ہے سب کے نظر سب کے سامنے اس کی عزت اونچی ہے میری عزت کم ہے تو سمجھنے والا انہیں سب کے پہلے سے افضل اونچا درجہ ہو گیا کیونکہ یہ صحابی سب جنہیں افضل والے میں کس جنہ گنہگار کر سمجھ کے جاتے تھے اب وہی صحابی کے محفل کے اندر وہی مسجدی محفل کے اندر آقا کے سامنے عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں عبادت گاروں سے افضل تھا آج میں کہتا ہوں اے ابو بکر اے عمر اے علی اے عثمان اے ابو ہریرہ اے طلحہ دیکھ لو میں عبادت میں افضل ہوں بولے تھے آج میں کہتا ہوں عبادت میں سب سے افضل یہ بندہ ہے یہ بندہ ہمارا دل کو پاک کرنا ہمیں دل کو پاک کرتے نہیں یہ پیٹ پیچھے کی بات ان کی بات رمضان یہ ایک ایسا ایک موقع دیتا اللہ تعالیٰ 12 مہینے میں ایک مہینہ 12 مہینے میں ایک مہینہ ایسی موقع دیتا ہے
ऐ लोगों, अपने बहनों को किसी ना इत्तेफाक किसी बात करे तो जाकर माफी ले लो। अपने माँ बाप को क्या तुम ना इत्तेफाक किसी कुछ ना कुछ कह दे तो माफी मांग लो, क्योंकि रमजान आने वाला है। आने वाले दिनों में फिर तुम्हारी हयात है, इसकी गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। कभी तुम्हारी मौत तुम्हारी पीठ के पीछे है, मौत तुम्हारी पीठ के पीछे है। आप मिट्टी में मिलने वाले हैं, आप खत्म होने वाले हैं। ये ना एक दिन ये दुनिया छोड़ना है, अगली दुनिया 50,000 साल की है। ऐ बंदे, ये जिस तरह इस दुनिया को आया उसी तरह और दुनिया को जाना है। तो उस दुनिया में तो अल्लाह के सामने फेस करना है। उस फेस करने के लिए आप तैयार हो जाओ, इस जगह पर फना हो जाओ, इस जगह पर सब कुछ छोड़ दो, आप पाक हो जाओ। सब आगे जाने, आप पीछे रहो। क्यों? अल्लाह ताला मेरे लिए इन्हें सबको फना कर दिया, उनको छोड़ दिया। अल्लाह से राजी हो जाओ, अल्लाह से राजी हो जाओ। अल्लाह के हर बात पे हर आन में खुश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह को तुम्हें तो देखे नहीं, अल्लाह को तुम्हें देखे नहीं, मोहम्मद को तुम्हें देखे नहीं, ताबीन को तब्बे ताबीन को तुम्हें देखे नहीं, औलिया को तुम्हें देखे नहीं। अगर तुम्हारे रहबर को देखा, रहबर की बात पर अकीदे पर रहो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, या पीर हक कदीर, या पीर हक कदीर, या पीर हक कदीर। हजरत जी मक्की मदनी हजरत जी, हजरत जी मक्की मदनी हजरत जी, हजरत जी मक्की मदनी हजरत जी। अगर इस तरह पाबंदी के साथ अमल है, लोगों घुमरे में मत जाओ, घुमरे मत जाओ, दरगाह को जाओ, मनाने हैं, मगर औरतों को गोशा पर्दा है। याद रखो, जो वली पाक है उसका नबी पाक है, जो नबी पाक है तो उसका अल्लाह पाक है। औरतों जाओ, अगर पर्दे के साथ एहतराम करते हुए एक जगह बैठ कर खाओ। उजूल के अंदर, हुजूम के अंदर आप घुसना गुनाह है, घुसना मना है। ये याद रखो, औलिया भी वो शख्सियत है जो शरीयत मुस्तफा के रास्ते पर चलने वाले। शरीयत मुस्तफा छोड़कर कभी नहीं जाएंगे वली, वली उसी अकीदे पर चलेंगे। इंशाअल्लाह हम उसी अकीदे के ऊपर अमल करेंगे। हर कौम के ऊपर मोहब्बत की निगाह रखो, हर जात के ऊपर मोहब्बत की निगाह रखो, और छोटा हो बड़ा हो उसे इज्जत करो। बच्चों के ऊपर मोहब्बत की शफकत की नियत रखो, दुआ करो। बड़ों आते ही अदब के साथ उठ कर उनको अदब की जगह छोड़ते जाओ। क्यों? देखते जाओ तुम्हारे अंदर तजल्ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, तो 1000 साल का इल्म पढ़कर अगर वो इल्म तेरे जिस्म में रख लिया मगर तेरे में अदब ने है तो सब बेकार। एक अदब 1000 साल का इल्म के बराबर, एक अदब 1000। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात अदब वाली है, अदब वाली है, अदब वाली है। अहले सुन्नत वल जमात मोहब्बत वाली है, मोहब्बत वाली है। अहले सुन्नत वल जमात किसी से नफरत नहीं करती, सबसे मोहब्बत करने वाली है। अहले सुन्नत वल जमात हर इंसान के लिए दुआ देने वाली जमात है। अहले सुन्नत वल जमात हर इंसान की मदद करने वाली जमात है। अहले सुन्नत वल जमात वो नबी की सीरत पर चलने के हुक्म पर उसकी फना होने के लिए तैयार है। अहले सुन्नत वल जमात जो आले रसूल के खानदान पर सर कटाने के लिए तैयार है। अहले सुन्नत वल जमात वो तहाबीन के, वो मेरे आका के जो खुलफे राशिदीन है उनके नाम पर लब्बैक बोलकर चलने की जमात है। ना तो अबू बकर छोड़ेंगे, ना तो उमर को छोड़ेंगे, ना तो उस्मान को छोड़ेंगे, ना तो सहाबा को छोड़ेंगे। हम अहले बैत को भी एक निगाह रखेंगे और सहाबा को भी एक निगाह रखेंगे। हम अहले बैत को एक ऊंचा दर्जा देंगे, हम सहाबा को भी एक ऊंचा दर्जा देंगे, क्योंकि हम एक तराजू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक तराजू को बराबर तोलने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, या पीर हक कदीर, या पीर हक कदीर। फिर मेरे आका फरमाते हैं, ये आम में जिन्ना आना रमजान के मैं रमजान के बयान में ऐलान करता हूँ, याद रखो। ये आम में जिन्ना आना म्हणजे हजरत का झपक हुआ, ये बोलना ये गद्दार इंसान बोलता है। गादी के ऊपर कहकर मैं कहता हूँ, क्योंकि
वही आती सिर्फ मोहम्मद को, किसी को वही नहीं आती। ये गद्दार इंसान, ये ढोंगी करने वाला है। खुदा की कसम, जिसने ये आदत डालकर चलेगा उसके क़यामत के दिन उन्हें जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। क्योंकि हम वलियों को मानेंगे, वलियों के पास अदब सीखेंगे। कोई वली के ऊपर कोई जिन आम में नहीं आता। मुझे हजरत नहीं, मुझे वो है, ये है बोलने के लिए औकात क्या है? तेरी जबान क्या है? तेरी जबान से किस तरह बोलेगा? तो मुझे हजरत आ रही तो है तेरी जिंदगी के लिए। दिखा दे मेरे गौस के पास हमको मेरा जीना है कि दिखा दे मेरे खाजा के पास हमको जीना है कि क्यों बोलता है कि उसका नाम लेकर, उसका नाम पैगाम लेकर बाहर जाता है? गौस का झंडा चढ़ाओ, तेरे बाप की जागीर, तेरे बाप की जागीर। गौस का झंडा आसाम में मिलना चाहिए। अरे गौस किस तरह चले उस तरह चला, पहले तू चल, बाद गौस के झंडा पकड़। तू खाने की हिम्मत नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं, चलने की हिम्मत नहीं, सीरत पर चलने की हिम्मत नहीं, मोहम्मद ही नहीं बनता। मेरे हमको ये आ रहा है, मुझे वो आ रहा है, वो हजरत आ रहा है। रमजान के महीने में बोल रहा हूँ, खुदा की कसम ऐसा इंसान गारत हो जाएगा, गारत हो जाएगा। कोई वली के ऊपर अगर जिन आ गया, खुदा की कसम दिखा दो, इसी वक्त अहले सुन्नत वल जमात छोड़कर तुम्हारा गुलाम बनकर मैं भी जिन्नत में फिरता हूं। कैसा बोलती? हर बात को कहना मुझे ये इशारा आ रहा है, मुझे ये इशारा आ रहा है, मुझे ये मालूम हो रहा है। अरे कौन है तू? तू कौन है? तेरे में क्या है वैसी चीज? तू अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है, तू अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है। यहां बात करता बाहर का सदमे को चुगली खोल के बातें करता है, तू बाहर है, तेरी जबान वजू कर कर नमाज पढ़ना है, तू बैठ जाकर उसका दोस्त का नाम ले लेता है, खाजा का नाम ले लेता है। किस हैरत है तेरी जिंदगी के लिए? ये जिंदा क्या खेल है तुम्हारा? खुदा की कसम इसके ऊपर मैं तहरीक निकाल रहा हूं, ये कुलमा को जमा लो। ऐसे लोगों को जो आम है इनको पकड़ कर डालकर हम पूछेंगे और उसे सजा देंगे। क्यों अपने को गुमराह कर रही? सीरत मुस्तफा को सिखाओ, सीरत मुस्तफा की तरफ तवज्जो हो जाओ, नमाज की पाबंदी करो। ये नाम पढ़कर आदमी को गुमराह करके नहावना नहलाना तुम्हारे बाप की जागीर है। ये वली के पास जाकर नहावन नहलाने औरत की इज्जत में है, औरत की इज्जत में है। औरत को नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजाब उतरने के बाद, कुरान के अंदर हिजाब के बाद तू कौन सा खेत का मूल्य? जब हिजाब के ऊपर तू अदब नहीं करे तो वली कैसे बन सकता है? कुरान आला है, हमारा पूरा ईमान है, कुरान हमारा पूरा ईमान है। बैठ जाकर अत्तर पीना, बैठ जाकर बट्टा झुलाकर यूं झूलना तेरे बाप की जागीर दी है। अरे बैठेंगे उस वक्त तूने खाया था कसम, वो मर्दू शैतान ने कसम खाया था। पढ़ सूरा, पढ़ सूरा जिन के अंदर पढ़, सूरा रहमान के अंदर पढ़। अल्लाह ताला कह रहा है वो जिन ने उस दिन वादा कर गया था तेरे बंदों में, पाक बंदों में मैं उसकी जिस्म में जाकर मैं कह दूंगा तेरे पाक वाले का नाम लेगा और उनको गुमराह डालकर तेरे जगह से छोड़कर मेरे जगह में मैं खिला लूंगा। अकल नहीं, तवज्जो कर। खुदा के कसम ये आम में जिन्नत आती, ये आती, वो आती, इसके ऊपर क्या खुशियां हो गई आपको? क्या भी साहेब आ रही है क्या में पुड़गो से साहेब कौन है? कौन है साहेब? हमें वली को इज्जत करते, हमारा सर कटा सकते, ये मेरा पीर भाई को हमें सर कटा सकते, हमारे नमाजी पाबंदी वाले सर कटा सकते, हमारे सुन्नी को कलमा पढ़ने वाले से सर कटा सकते। उन्हें कौन क्या माना? जिसका नाम है जिन। जिन का माना क्या है? शैतान की औलाद। जिन कौन है? शैतान की औलाद। जब शैतान की औलाद उसके अंदर आया तो उसका काम क्या है? हम लोग गुमराह। खुदा के कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नतों को पाबंदी करते थे, जिन्नतों को भी इल्म देते थे। वो जिन कैसे थे? पाक थे। वो जिन किसी के अजमेर के आंख को नहीं आते थे। मस्जिद नबवी के अंदर जाओ, इंशाअल्लाह एक जगह ऐसी है, एक जगह ऐसी है वहां पे वहां नाम लिखा, यहाँ से जिन्नतां शुरू होती। मदीने के बाहर वो जगह है, ऑटोमेटिक बस खड़ा कर दी तो बस ऑटोमेटिक चलाने की जरूरत नहीं, 100 की स्पीड में जाती है बस, जिन्नतां निकलते थे। वो वहां भी जिन्नत छीना। क्यों ना हमको नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही हमको? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक जिन वो ही मेरा कलाम पढ़ेंगे, मेरी नमाज पढ़ेंगे, जिस तरह मेरी मखलूक पढ़ेंगे वैसा पढ़ेंगे, वो किसी को नहीं तकलीफ देंगे, वो जन्नत है। जो बेजिन है, बेअखलाक है, उन्हें कम सितारे वाले के आंख आते हैं। क्या है?
कम सितारे आलेंगे इसके वास्ते वही से इंसानों के ऊपर मेहरबानी कर क्योंकि आप भी गुमराह हो जाएंगे, आप भी जहन्नम में जाएंगे। अरे हमें अल्लाह का रास्ता दिखाना दो। देखो इबादत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, मेरे आंखों की ठंडक क्या है? नमाज। अल्लाह के रसूल क्या बोले, मेरे आंखों की ठंडक नमाज है। जब अल्लाह के रसूल आंखों की ठंडक नमाज है तो लोग जिन आग में आकर इंसान बोलकर वहां झंडा चढ़ाओ, वहां जाको दरगाह दो उदबत्तियां सिलगाओ, वो दरगाह जाको ये करो, तो अल्लाह के रसूल ये हुक्म नहीं दिए, मेरे गौसे पाक ये हुक्म नहीं दिए। हम मोहब्बत से वली के पास जाते हैं, हमें आग में जिन्ना कर वली के पास जाए, जैसे जिन्ना पूरे गोली के तलवे के नीचे धूल के बराबर, मेरे वलिया के धूल के बराबर ऐसी जिन्नता पूरे लिए। समझ में आया? इंशाअल्लाह हम करें तो अकीदे के साथ अल्लाह की तवज्जो करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलेंगे, और ऐसी जिन्नता है इस वाले को खुदा की कसम खुदारा मान आप भी आखिरत में जहन्नम में होंगे, और उनके साथ जो भी जाते हैं वो भी जहन्नम में होंगे। अरे कुरान है यार, कुरान एक ऐसी किताब दिया अल्लाह ताला, उसके अंदर मोमिन के लिए हर तरह का शिफा है। अब तुम ना पढ़ने तुम खुद पढ़ सकते हो, पूछ लो कोई सी चीज पढ़े तो अच्छा मेरे बच्चे के ऊपर दुआ करेंगे। जो पढ़ ली कोई, हमें तो बेनमा पढ़ने वाले तो है ना, उनको पूछ ले तो कर लो। मैं तुम्हारा दरगाह जाओ बोलूँ नहीं, दरगाह जाओ वलियों से दुआ ले, दरगाह जाओ वलियों से दुआ ले, मगर दरगाह के पास बेबती करने को पानी नहावन हलाना, आगा बेब से नहावन हलाए तुम चल जाना। अरे हाँ गया उसके आंख में जिन है ना, जिन को आंख में आए बाद वली के पास क्या ले मालूम, वली के चप्पल के धूल के बराबर वो जिन, इसलिए वहां जाकर चढ़े, उसकी चप्पल से दो सिर को मारे तो नहीं जाता सर। अब वो छोड़ डाल को उसे जाकर फिर क्या को ये चीज़ ले लगा को नावना डाला करते ये नावन डाल को काला बकरा होना भाई, वो नाम भी टाइटल नाम काला बकरा छोना, काली मुर्गी छोना, कौन सा वली ऐसा करे ना? खुदा कसम अगर ऐसा कौन सा तक वली 200 साल के पहले का जो वली है अगर इस तरह कर दिया है तो बोल दो मैं खुदा की कसम मैं करना शुरू कर दूंगा। नहीं करना है हमें, अल्लाह उसके रसूल खुदारा गौसे आजम बड़े हस्ती हैं हमारे लिए, गौसे आजम बहुत बड़े हस्ती हैं जिसको गरीब नवाज सब चीज़ों को इल्म देख रहे हैं, तो ऐसे हस्ती हमारे हाथ में है, तो ऐसे वलिया पूरे हमारे हाथ में है। जब उनका दस्त पकड़ो कभी तो कभी बोलो गरीब नवाज खान को जिन्ना कर बोल तो यहाँ वो बहुत दूर की बात, तवक्कल मस्तानी वाले बाबा को पूछिए, मस्तानी माँ को पूछिए, हमें मखलूक किसकी उम्मती हमें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। तब मूसा अलैहिस्सलाम की जो उनके बराबर की हस्तियां हमें करो तवज्जो कर दो, हमना कोई उनके जो उनके उम्मतें उनके नबियों के बराबर कर हमना कोई एक तकवा और परहेज़गारी का एक स्टैंड दिया है, तो उतने बड़े दरबार का हमने औकात दिया है, तो तब तुम्हें कैसा गिर जाती मामूली जिन्ना के सामने? गिरो नको, ऐसी चीजों को गिरो नको, इबादत करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को पुकारो, मोहम्मद को पुकारो, उसके वली को पुकारो। आप लोग कैसा गए, आज वली का नाम कैसा आया, आज लोग कैसा चले, आज उनके दरबार को जाकर हमें फुला चढ़ा रही दुआ मांगने क्यों आया, उनकी सीरत को पढ़ो, उनके ऊपर अमल करो, इंशाअल्लाह आप भी वली बनेंगे, आप भी वली, आप भी वही कलमा पढ़ते है ना, मेरे गौस वही कलमा पढ़े, आपका गौसे पाक का वही कुरान, तुम्हारे के लिए भी वही कुरान, गौसे पाक को भी 5 खुद की नमाजी, तुम्हारे को भी 5 खुद की नमाजी, गौसे पाक को भी महीने के रमजान के रोजे भी तुम्हारे पे वही, सब कुछ वही है, आप क्यों ना हो सकते हैं, सब कुछ वही है, आप भी पढ़ सकते, मगर उनमें तकवा और परहेज़गारी डर था अल्लाह का, आप में डर नहीं है, आपको नाम होना, इसलिए नाम के वास्ते आपके पास गुलाम बनाना, लोगों को गुलाम बनाने की आप ये हिम्मत है। हम यहाँ की गुलामी क्या करेंगे जी, ऐसी गुलामी बना लो कल क़यामत के दिन आपके अंगली के हुशारे से गुनहगार पूरे जन्नत को जाना, ऐसा बोल आपके अंगली के इशारे से ऐसा दिखा कर बचते गुनहगार पूरे चले जाना। एक सहाबी रसूल थे, पंजगानी नमाज में सब कुछ नहीं, हर हमेशा रात को बैठते, दिन सारे काम करते, जोरो बच्चों को पालते, ये हत्ते नहीं पोते, आगरों आगे रहती, सब कुछ हो गया रहता, आते मेहनत करते, अपने बच्चों को पालते, सीधा आते, कब की एक बार नमाज पढ़ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं देखो ये भी जन्नत है, ये भी जन्नत है। तो इनके पास पूरे सहाबा बैठ के पूछे जी हजरत तुम्हें क्या करती? तो मैं खेती करता हूँ, वक्त मिले तो नमाज पढ़ लेता हूँ,
पर दिन रात मेरे जोरू बच्चा खाना खिलाना भूखे रहती है, मैं मजदूरी करता हूँ, खाना खिला को जो बचा हुआ वक्त में जाकर अल्लाह की इबादत करूं। घर को पालना भी एक आधा ईमान है इस्लाम में, जोरू बच्चा को पालना भी आधा ईमान है, जोरू बच्चा को पालना आधा ईमान है इस्लाम में, फिर दीन आधा ईमान है। ये 2 मिलियन तो दीन तुलता सो, इसके वास्ते तराजू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तराजू बने। तराजू क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो दुनिया और आखिरत को दो को बराबर तौल पर चलने वाला उन्हें वली बनता है। मेरे गौसे आजम तिजारत भी करते थे और इबादत भी करते थे, दो को भी तौल पर चलने के बाद मेरे गौसे आजम आज वली बने। मेरे गरीब नवाज तिजारत भी करते थे और इबादत भी करते थे, आज हिंदुस्तान के हिंदल वली बने। हर वली ने दुनिया और आखिरत को दो को भी तौल पर चलने था, क्योंकि अल्लाह ताला बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हरूफ में बना है। ला इलाहा इल्लल्लाह कितने 12 हरूफ में बनाया है। अल्लाह के लफ्ज़ 4 ही क्या है? अल्लाह के लफ्ज़ कितने हैं? अल्लाह के लफ्ज़ 4 है, मोहम्मद के लफ्ज़ 4 है, अहमद के लफ्ज़ 4 है। क्या है? अल्लाह 4, मोहम्मद 4, अहमद 4। याद रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह 12 हर्फ है। तोल बराबर, तोल बराबर। ये कलमा पढ़ने वाला ईमान वाला बन जाएगा, वली बनता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। शान-ए रिसालत या रसूल अल्लाह, शान-ए रिसालत या रसूल अल्लाह, शान-ए रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। या पीर हक अली, या पीर हक अली, या पीर हक अली। हजरत जी मक्की मदनी हजरत जी, हजरत जी मक्की मदनी हजरत जी, हजरत जी मक्की मदनी हजरत जी। ऐसी मोहब्बत करो अल्लाह के ऊपर। अब आने वाले रमजान में सिराज भाई, आने वाले रमजान में माँ जी थोड़ा तवज्जो करो, ये लास्ट बात कहकर मैं बयान कर दूं, क्योंकि कर्फ्यू है, सब बाहर जाना है इंशाअल्लाह। ऐसी मोहब्बत करो जब अल्लाह का याद नहीं आती तड़पना, जब अल्लाह का जिक्र का वक्त चल रहा तो तड़पना है। ऐसी मोहब्बत रखना है, क्योंकि आप जाने को वक्त आपकी शान हजारों आदमियों से आपकी बारात उठना है दुनिया से। जब तुम्हारी बारात इस दुनिया से उठती है तो पूरे लोगों की ज़बान ये रहना, तकवा आदमी चलेगा, परसगार आदमी चलेगा। अगर ये रहने से मेरा मोहल्ला सेफ था, ये रहने से मेरा घर आबाद था, मेरे और आल औलाद आबाद है, इस तरह मोहब्बत रखना है। आप इस तरह बनो, आपके वजूद को पाक करो, आपके वजूद को पाक करो, आपके जिस्म को पाक करो। हर तरह के, हर आन में ज़बान से लेकर, आंख से लेकर, कान से लेकर, आपके दिल से लेकर और दिमाग से लेकर ये महीने में पाक करो। आप अमीर मत बनो, अमीर है तो पैसा बचाए तो आपके घर वालों को बांटो, रिश्तेदारों को बांटो, गैर कौम भी हो जाओ, आपके पड़ोस पहुंच जाओ, उसे भी खाना खिलाओ, हर इंसान को खाना खिलाओ। आप इबादत कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद सबके थे। किसके थे? सबके। मोहम्मद किसके थे? सबके। मोहम्मद सबके थे। अल्लाह सबका है, मोहम्मद सबका है, पीर सबका है। इस दिन भी एक ही रास्ते पर रहेंगे। पीर एक का बाप का जागीर नहीं, सबका भी। इसलिए हम हर हमेशा इनके तीनों के बात के ऊपर अकीदे पर चलना है। एक बात लास्ट कहकर मैं चल रहा हूँ, क्यों तकवा और परहेज़गारी किस तरह आना, आप किस तरह ईमान रखना, ये लास्ट बात में कहकर मैं बात इसको खत्म करूंगा। आपके अंदर इसी तकवा और परहेज़गारी आपके अंदर आना, इसी तरह परहेज़गारी आकर आप आने वाले रमजान में हमारे लिए भी, गुनहगारों के लिए भी तुम्हें दुआ करो। इंशाअल्लाह तमाम लोग अपने भाइयों से, अपने पीर भाइयों से, अपने आका की उम्मती के वास्ते हाथ उठाकर जितना बुलंद आवाज से रो कर दुआ मांगता है, इंशाअल्लाह कबूल होती है। सबके लिए मांगो। जो इंसान दूसरों के लिए तड़प तड़प कर पुकार कर बोलता है, अल्लाह ताला उसके घर को आबाद रखेगा। ये बगदाद के अंदर आपके अंदर तकवा कैसा आना, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह इसके अंदर आपके अंदर तकवा कैसा आना है। बगदाद के अंदर एक नौकरी करने के वास्ते हमें जाकर सुबह में काम के वास्ते बुलाते हैं, काम के वास्ते। तो काम करने के वास्ते आदमी बैठते थे, एक ब्रिज है, वो आदमी है, मैं गया था ब्रिज के पास से, तो वो ब्रिज के पास आकर बैठ को आदमी, आपको वहाँ के बड़े बड़े आदमी जो काम नौकरी है बुलाने को घर पे जाते।
वैसी जगह पर एक अच्छा परजगार इंसान गया, एक परजगार इंसान, तकवा और परजगारी रहती ना, उन्हें नमाज छोड़ता नहीं, झूठ नहीं बोलता, किसका हक कितना है उतना देना, वैसा इंसान गया, वैसे बड़ा परजगार इंसान गया, ढूंढने गया, मुझे नौकर होना, मेरे घर पर बनना है, उसके वास्ते जब तलाश करें। वहाँ भी एक जने पूरे जने नौकरा चल गए, वहाँ एक जना नौजवान छोकरा बैठा था, नौजवान छोकरा, आपके अंदर भी ईमान इस तरह रखना इंशाअल्लाह। नौजवान छोकरा बैठा था, जैसा नौजवान छोकरा बैठे तो जाकर हजरत पूछे, भाई मेरे घर में ऐसे फलाना दीवार बनना है, क्या आप आके उसमें काम नौकरी करती क्या, कुली काम करती क्या? तो वो बच्चा होता है, हजरत मैं कुली काम करूंगा और जो तुम्हें काम देती है उसी ज्यादा करूंगा, मगर मेरी शर्त है। अब काम क्यों बुला रही सो, शर्त दे रहा इसको ना, काम करने वाला मेरी शर्त है, क्या होगा? तो बोलते हैं मंजे को जब अज़ां होती है उसी वक्त में मैं थोड़ा छोड़कर मैं अज़ां नमाज को चल जाऊंगा, जैसा अज़ां होती है उसी वक्त में मैं थोड़ा छोड़कर नमाज को चल जाऊंगा, और उस वक्त में तुम्हें रोकना जी रहती है, उठा डालो ये कर, मुझे बोलना नहीं, मैं काम पक्का करूंगा। जैसा भी फरमाता है, तू कहाँ वाला, तू कौन, किधर कर, ये भी नहीं पूछना, और तू खाना खाता तो भी नहीं पूछना, ये 3 चीजों से परजगारी है, तुम्हें तेरा काम करो, अच्छा ले आओ भाई मुझे होना काम, तो आप काम करो। पाया खुद लिखते हैं, सुबह से जोहर की अज़ां हुई, अल्लाह अकबर को पाया खुद पे इतने 5-6 बानियां पटकी थी, अब वो उठा डाला तो मुकम्मिल हुआ, अल्लाह अकबर तो थोड़ा ही छोड़ दिया, सब कुछ चल। उनका बेटा वो जो काम बुलाया, उनके बेटे खड़े थे, जे हजरत वो 2 फड़े दलाल में क्या बोया था, दलाल को जाओ नमाज को करता था, मैं क्या बोला था, जिस वक्त अज़ां होती है मुझे तुम्हें बोलना नहीं, अच्छा लगा भाई, सीधा जाको नमाज पढ़ ले, भी रहे जोहर का टाइम, काम शुरू करे। इन्हों काम ऐसा करे कि 3 दिन का काम 1 दिन में कर, काम करते ही उसे मोहब्बत पैदा की, बाप सुबह सिखाया है, राती खा लेते हो जो एक रुपया, मैं क्या बोलिया तुम ना, मुझे बुलाना नहीं खाने में, जान दे भाई काम वाले तो बोलो, तुम्हें किधर वाले, मैं बोलिया नहीं, मेरा एड्रेस नहीं पूछना, मुझे क्या पूछना नहीं, तुम्हारा होना काम से मतलब, तुम्हारा काम नहीं करे तो मुझे बोलना। बराबर मगरिब की अज़ान से पहले अज़ान होती है, थोड़ा सरदाने से चले दिन का काम, 3 दिन का काम 21 दिन में कराओ, इन्हें खुश हो जाती, बहुत अच्छा बच्चा, क्या तो बोलिया 3 दिन का काम 1 दिन में कर देगा, बहुत अच्छा आदमी करो, इन्हें पैसे ज़्यादा कहते देखिए 7 दिन कहते 7 दिन आते, चल गया इनका काम कर लाती है, चल जाए। फिर ये जो आदमी जो बादशाह हजरत थे, इनको काम की याद आया, इनको थोड़ा फिर काम आता है, फिर धन डाले को वो जगह पर बैठ को नौकरान को लेती ना, गुलामा को वो जगह पर जाकर पूछती, भाई परसों वो नौजवान आया था, वो नौजवान बहुत दिनों से दिसरा नहीं, कहाँ गया था? बहुत दिनों के बाद जाकर वो जगह पर देखी, इनको फिर एक काम आया था, 1 महीने 6 महीने 5 महीने के बाद एक काम आया था, वो काम के वास्ते तलाश कर, वो आदमी है अच्छा ना, 1 दिन का काम 3 दिन में कर रहा है ना, वो छाया अच्छा कर जाकर धरना तो आजू बाजू वाले बोलते नहीं भी पहले आता था, इस बीच में बहुत दिनों से नहीं दिस रहा बंदा, तो भाई क्या तब मालूम क्या उनका एड्रेस है, उनका एड्रेस है मालूम क्या? तो मालूम है उनका एड्रेस है बगदाद के खबरस्तान ही, बगदाद के खबरस्तान ही, खबरस्तान के अंदर वो झोपड़ी कचरा गिचरा दाल को रहती, वहाँ छोटी झोपड़ी बन लेकर वो झोपड़ी में सोले करता हुआ बगदाद के खबरस्तान को धरना लेकर, कौन है ये हजरत, ये पाक आदमी, ये आदमी भी पाक आदमी, सीधा जाता है, वो जैसा जाको इसके होती सेंधी की पत्तियां की ये बने रहती, उनकी कुर्सी बने रहती, इन्होंने जैसा वो दरवाजे में गया तो अरे पाक इंसान, एक पाक इंसान को दरियाफत करने के लिए आया, क्या डोर भी खोलते नहीं अंदर से, अरे पाक इंसान, एक पाक इंसान की दरियाफत करने आया क्या? जैसा दरवाजा खोल के देखे तो शिद्दत के बखार में कांपते रहते, हदरते रहते, बहुत बखार लगी रहती, देखे सुनना अयो क्या जी, तुम्हें बोलते ईमानदार नहीं, नमाज छोड़ते नहीं, वादे के पक्के नहीं, जबान पाक है, काम भी वो सच करते, तुम्हें कर जा पढ़ दिया गया तो मेरा वक्त तो पहुंच गया। ऐसे आदमियों के पास अल्लाह ताला तुम्हें भेजा सर, नहीं तो यहाँ ये खबरस्तान में कौन आते मुझे तलाश करने, ये काम करो, चलो हकीम के पास कहती, क्या क्या पूछे तो नहीं, मेरा वक्त हो गया, मेरा वक्त थोड़ा नज़दीक में है, मेरा अल्लाह से बात करने छोड़ो मुझे कहीं में, मेरे पास 7 दिनार भी वो कमाए थे ना, 7 दिनार नहीं, ये 7 दिनार ले को मेरा कफन का कपड़ा ले लो,
क्या बोलते हैं? कफन का कफन। मेरा कफन का कपड़ा लेकर आओ, किसी की मोहताजी न डालना जरूरी नहीं, मेरा कफन का कपड़ा मिल जाएगा या कांते भी मंदिर मट्टी कर डालो, तुम्हारा सवाब आता है। आज रात मुझे छोड़ डालो, आज रात मेरे अल्लाह से रियाजन की बात करना है, आज रात में कल सवेरे तुम्हें आप मुझे ऐसा करो। क्या बोल रहे ना, कफन कपड़ा ले लगाने निकल गए तो दूसरे दिन कफन का कपड़ा ले वो सीधा है तो वो कुर्सी के अंदर से मुश्क की बात आती है। क्या बात है? मुश्क की बात आती है, इतनी खूबसूरत बात आती है, हवा ठंडी हवा आती है, घबराती है, इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? खोले तो नूरानी चेहरा पड़े रहती है, चेहरे की दाढ़ी हल्की रहती है, ठंडी हवा में हल्की रहती है, मुस्कुराते हुए चेहरा, आंखों में मुस्कुराते हैं, ऐसा नहीं कि मरिया इंसान गुजर गया इंसान नहीं, ऐसा मस्त पड़े रहती है। देख को बोलती हैं या अल्लाह, ये अल्लाह वाला है, अल्लाह मैं खुश नसीब हूँ। वो बंदे पक्के इंसान जो बोलती है परसगारी, अल्लाह मैं खुश नसीब हूँ जिस इंसान के लिए तू मुझे कफन का कपड़ा लाने के लिए इस जगह पर भेजा, जिसके चेहरा देखने से बोलता ये अल्लाह वाला है, इसका चेहरे के अंदर नूर है, इसकी बात जिस्म के अंदर मुश्क की बात आ रही है, ये रात पूरा अल्लाह से रियाज़ो न्याज़ करे है, अब इसका चेहरा देखने से मेरे भी गुनाह माफ होती है, बैठ कर रोता है, क्या क्या करता है, बोले रहती दो बातें बोले रहती मरने से पहले, एक मेरा कफन के कपड़ा एक पैसे से लेने का, एक अंगूठी उठा कर दिए थे। ये हारून बादशाह है, बगदाद का हारून रशीद बादशाह रहता है, ये अंगूठी हारून रशीद को दे डाल। असर के टाइम में उन्हें दरिया दजिले के पास घोड़ा लेकर आता है, सवार ले लेता, उस टाइम ये उसे ये अंगूठी दे डाला, उसकी अमानत उसे दे डाला, ये उसकी अंगूठी है। वो अंगूठी उठा लेती, इनको मट्ठी करने के वास्ते खड़जा को खबरस्तान में, अरे बगदाद के लोगों, कौन ये हजरत पुकार रही सो, अरे बगदाद के लोगों, अगर तुम्हें जन्नत में जाना का है तो आओ, एक पाक मुत्तकीन इंसान है, उसके जनाजे को आ जाओ, उसके चेहरा देख लो, आप पूरे जन्नतियां बन जाएंगे। तो पुकार अज़ान नहीं दे रही, पुकार रही से खड़ को पुकार रही, पूरे लोग बगदाद के पूरे लोग आए थे, मट्ठी करती आखिर तक लास्ट तक देखे तो भी इतने बारीक बारीक जो इंसान जो मट्ठी करने आया था वो इंसान को एक अहले होश में एक ये इंसान के वास्ते खिदमत करे तो उसके अंदर आंखों में नूरानी दे रहा, नूरानी देकर क्या करते हो इंसान जैसे जनाजे की तरफ फिर तो जो लोग कहते जिन्हें सफ में खड़े कर देखे तो मलाइका फरिश्ते सफों में खड़े, मलाइका फरिश्ते औलिया सहाबा पूरे खड़े रहते वो बच्चे के वास्ते, गुमराह इतने बड़े बड़े परसगार लोग ये बच्चे के लिए, ये तकवा और परसगारी, इतना परसगारी है क्या एक बंदा बोल मैं खुश नसीब हूँ इसकी मट्ठी करने के लिए, मुझे अल्लाह ताला ने नियामत दिया, मट्ठी कर डाले। अब दूसरा पॉइंट क्या था? अंगूठी बादशाह को, अंगूठी बादशाह को देने के लिए गए। असर के वक्त में बादशाह उधर से आ रहा है, उनकी बीवी, उनकी बादशाह उनकी बीवी दो जने भी बैठ कर आ रही, वो आती ना घोड़े खड़े में बैठने को आ रही, आती ना खड़ा था, ये मुत्तकीन इंसान खड़ा था, बोला अय हारून रशीद बादशाह, अय हारून रशीद बादशाह खड़ा कर थोड़ा तेरी घोड़े गाड़ी खड़ा कर पूछती, जैसा घोड़े गाड़ी खड़ा करने होता अय कौन है तो सिपाही सालार आकर पकड़ लेते हैं, बादशाह को नाम से पुकारा, नहीं भाई ये अंगूठी एक नौजवान देख गया, उसे उसके आस्ते की अंगूठी उनकी अमानत देना है, फिर क्या हो क्या अंगूठी ले ली हीरे की, वो अंगूठी तुम्हें ले लेना, क्या अंगूठी दे दी। बादशाह जिस तरह अंगूठी को देखता है, देखने के बाद पूछने लगता है हाय अल्लाह, ऐ बंदे ये अंगूठी कौन दिया तुझे, ये कौन दिया, ये कहाँ है इन्हें, ये किधर है इन्हें, ये कब दिया? तो बोलने लगे ये बच्चा तो मर चुका है, ये बच्चा आखिरी सांस में, ये तेरी अमानत है, उसकी अमानत वो बादशाह को दे डाल गया, तेरी अमानत तेरे हाथ में लुटा दियो, ये मेरा काम है। ये हारून रशीद देखता अंगूठी के लिए, अपनी बीवी देखती, दो जुबेदा दोनों भी देखकर रोने लगती, इन्हें परेशान होता है, मैं दिया तो अंगूठी तू दिया, अब यहाँ बादशाह भी रो रहा है, बादशाह की बीवी भी रो रही, बादशाह की जोड़ में सिपाही साल उन्होंने भी रो रही, रीजन मालूम नहीं, अंगूठी को देख को रो रही, पूरे आलम रोने लगती है दरिया दजला के पास, तो इन्हें घबरा हो जाता है, मैं दिया तो दिया अंगूठी, मगर आलम क्यों रो रही है ये तो मुझे मालूम नहीं। बादशाह बोलता है अरे बंदे वो मज़ार शरीफ कहाँ है, अरे बंदे वो मज़ार शरीफ कहाँ है। गए मज़ार शरीफ तो कच्ची चिट्ठी मज़ार शरीफ, वो मज़ार शरीफ के पास जाकर बैठा है,
मज़ार शरीफ जाकर दिखाने के बाद देखे मज़ार शरीफ कच्ची थी, जाकर बादशाह जाकर मज़ार शरीफ के ऊपर सर रखा और उनकी बीवी भी सर रखे, रोने लगे, हमें क्या करे, हमारे ऊपर गैरत आ जाओ, अल्लाह ताला क्या करे ना, हमारे ऊपर गैरत आ जाओ, हाय हाय आए अल्लाह हमें माफ फरमा दे, आए अल्लाह हमें माफ फरमा दे। तो ये बंदा ये दोनों का चेहरा देखा, देखने के बाद लाश में पूछने लगा, आए लोगों है तो है, वो बच्चा कौन है और तुम्हें कौन है, ये रोने वाले कौन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं दिया तो दिया एक अंगूठी, मैं दिया तो दिया एक अंगूठी, मगर मालूम है तू भी रो रहा है, उन्हें भी रो रहा है, उन्हें भी रो रहा है, और खबर के ऊपर पढ़कर पाला पला कर रो रही। पूछने लगा, बोलता हूँ बादशाह हारून रशीद और जुबेदार बोलने लगती, रो रो कर बोलने लगती, ये बच्चा कोई भी नहीं, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये बच्चा कोई भी नहीं, मेरा बड़ा बेटा है, मेरा बच्चा मेरे तख्त पर बैठने वाला था, ये अल्लाह के राज में आगा था, हर दिन सुबह उठा तो अल्लाह को पुकारता, उसके अल्लाह की नमाज़ा नहीं छोड़ता, अल्लाह के हर अरकाम में फॉलो करता था। मैं हमें चिड़चिड़ को बोलते थे, अरे नमाज छोड़, पहले दुनिया तू संभालना है, ये जिंदगी संभालना है, उसे हर बात में बोलने लगता, अब्बू जान तुम्हारी बादशाहगिरी बाद में मुझे अल्लाह की इबादत पड़ी, अब्बू जान तुम्हारी बादशाहगिरी बाद में, तुम्हारी दुनियागिरी बाद में, मुझे जरूरत है। माँ भी वही सख्त उसके ऊपर पनिशमेंट देते थे, बाप भी पनिशमेंट देते थे। आखिरी वक्त में बोलने लगा, अब्बू जान तुम्हारी सल्तनत न को और तुम्हारी दुनिया न को, मुझे मेरे हाल को छोड़ दो, मैं फकीर बनना चाहता हूँ, मैं अमीर नहीं बनता, मैं फकीर में अमीर बनना चाहता हूँ, फकीर में अमीर बनना चाहता हूँ। मैं इस तरह मुझे तुम्हारी जिंदगी पर परवाज नहीं है, तुम्हें बादशाहगिरी की जिंदगी करो, क्योंकि मैं फकीर के अंदर अमीर बनना, मुझे वो होना, मैं जो इरादा करता हूँ मुझे वो होना, मेरा अल्लाह से छुपना, मैं इस तरह की परसगारी के रास्ते पर जाना है। उस टाइम में मेरा बच्चा मेरे से, उसके पास कुछ भी नहीं है, कब मैं हीरे की अंगूठी दिया, कुछ झीलन देकर को वो अंगूठी भी नहीं ले लेकर गया, उस पर खर्चा भी करे नहीं, ये फकीर में अमीर है। आज सारे बगदाद इसकी मज़ार को आकर देखने से उसकी पूरी परेशानी हुई, मैं बादशाह होकर मेरे पास कुछ भी नहीं आ रही, लोग उसके मज़ार के पास जाकर हर दिन जाकर उसकी मज़ार को छीन कर उसकी मुराद लेकर आने से उनकी मुराद पूरी हो जा रही है। मैं हारून रशीद बगदाद का बादशाह बैठने के बाद मेरे पास एक भी इंसान आकर नहीं पूछता, बादशाह मेरा ये हल करो, बादशाह मेरे वो हल करो, क्योंकि मेरा बेटा फकीर में अमीर बनकर गया, बादशाहगिरी बनकर मैं अमीर में मैं फकीर हूँ, अमीर में मैं फकीर हूँ। रे पैसे वालों, पैसे रखने से तेरी जिंदगी में तू बादशाहगिरी नहीं है, अरे पैसे छोड़ दे, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ खुदा रख, इंशाअल्लाह उस वक्त में तू अमीर बन जाता, तू अमीर बन जाता। आप रमजान के महीने में वक्त आ रहा है, वो तकवा और परहेज़गारी बंदा ने दुनिया छोड़कर गया, सारी बगदाद आकर उसके खबर के पास सजदा करने वाली बन गई। आप भी बन सकती, आपके अंदर तकवा और परहेज़गारी रखो, रोजा पाक रखो, वजूद पाक रखो, आंख पाक रखो, जबान पाक रखो, अपने हर आंख पाक रखो, अपना दिल पाक रखो, इंशाअल्लाह आप कामयाबी बनेंगे, कामयाबी बनेंगे, कामयाबी इंशाअल्लाह। आने वाले रमजान में सब जने के वास्ते दुआ करो, इंशाअल्लाह ताखिरात इस जगह पर चलाने की इरादा करें, इंशाअल्लाह मैसेज में भेजेंगे, तमाम लोग यहाँ खाने का भी इंतजाम रहेगा, वो 5 ताखिरात में इंशाअल्लाह ताखिरात में चलेंगे, रमजान तक का बयान जिक्र में ताखिरात चलेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु